Hello friends, today we are going to study the principle of inheritance and variation. This is chapter 5 of 12th class biology. Welcome to my channel Learn with me. First we'll begin with the Gregor John Mendel. He is also known as father of genetics. इन्होंने कई सालों तक पी प्लांट्स पर स्टडी करी. दिस पी प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड पाइसम सेटाइवम एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ लॉज दिए थे जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं. Now the question arises, why Mendel used garden pea plant for his experiment? The reasons were, first of all, the plants are bisexual. Bisexual means both the male gametes and female gametes are present in the same plant. So the true breeding varieties of the plant can easily be obtained. Second thing is they have very short life period, तो काफ़ी कम समय पर हम इन पे काफ़ी सारे experiments कर सकते थे. Thirdly, they can easily be cross pollinated. That means हम एक plant के pollen grains को दूसरे plant के अवम के साथ easily fuse करवा सकते हैं. Fourth thing is several contrasting characters were seen in these plants. What were those contrasting characters? Let's discuss one by one. The first one was shape of the seeds. अब कुछ plants ऐसे होते हैं जिनके seeds round होते हैं and some of the plants have wrinkle seeds. Second, color of the seeds. Some plants have yellow seeds, some plants have green seeds. Third is color of the flower. कुछ plants के flower purple होते हैं तो कुछ प्लांट के फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं. देन पॉड शेप. पॉड मतलब मटर के ये जो छिलके होते हैं इन्हें हम पॉड्स कहते हैं. सम ऑफ द पॉड्स आर इन्फ्लेटेड या फिर स्मूथ होते हैं एंड सम ऑफ द पॉड्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड और रफ. देन कलर ऑफ द पॉड्स. सम प्लांट्स हैव पॉड्स विच आर येलो इन कलर तो कुछ प्लांट्स के पॉड्स ग्रीन कलर के होते हैं. देन पोजिशन ऑफ द फ्लावर. सम ऑफ द प्लांट्स have flowers in their axial position. Side के positions में flower produce होते हैं. And some plants have flowers on their terminal position. Then the last one was height of the plants. Some of the plants were tall, some of the plants were dwarf. So these were the 7 contrasting characters which was considered by Mendel for his experiments. Before we proceed further, there are certain terms we have to understand first, like heredity. Like you all know, जब एक organism produce होता है by a sexual reproduction तो some of the characters comes from its father and some of the character comes from their mother. तो ये जो characters का transmission हुआ इसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी. तो हेरिडिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The characters which transfers from one generation to another generation is called heredity. The second thing is variations. वेरिएशंस क्या होते हैं? अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और मेल और फीमेल के गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दो अलग अलग इंडिविजुअल से गैमेट्स कंबाइन होते हैं तो जो डिफरेंसेस आया इस ऑर्गेनिज्म में इसे हम कहते हैं वेरिएशंस. द थर्ड इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. लाइक यू ऑल नो, वी इन द ह्यूमन बींग्स वी हैव 46 chromosomes and these chromosomes are present in pairs. So कितने pairs होंगे? 23 pair of chromosomes are present in the human body. Out of these 23 pairs, 22 pairs of the chromosomes are similar in their shape, size and structure. ऐसे chromosomes को हम कहते हैं autosomes. और one pair ऐसा होता है which is different in the shape, size and structure. इसे हम कहते हैं sex chromosome. Okay, so you can clearly see in this picture 1 से लेकर 22 तक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स आर सेम इन द साइज, शेप एंड लेंथ एंड स्ट्रक्चर. इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. और सेकेंड थिंग इज हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स. ये जो लास्ट में आपको सेक्स क्रोमोसोम दिख रहा है आप इसमें देख सकते हैं एक क्रोमोसोम बड़ा है दूसरा क्रोमोसोम छोटा है. सो दे आर डिफरेंट इन देयर साइज, शेप, लेंथ एंड स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट कम्स द जीन्स. जीन्स क्या होते हैं? हमारे डीएनए में एक छोटे छोटे सेगमेंट्स, डीएनए में कुछ छोटे से सेगमेंट्स होते हैं
जो प्री डिफाइंड होते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम आई कलर की बात करें या फिर आई कलर का एग्जांपल लेकर चलें, तो इमेजिन करो कि एक छोटा सा डीएनए का ये फ्रेगमेंट हमारे आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? जीन। सो जीन इज एक्चुअली अ segment of the DNA which is controlling a character, that is gene. Now alleles, what are alleles? जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर्स। अगर वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर उसके एक लोकेशन पर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। लाइक हम आई के कलर की ही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो इमेजिन करिए कि यहाँ पर एक जीन लोकेटेड है जो कि कलर ऑफ द आइज को कोड कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है, तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी उसी लोकेशन में जीन प्रेजेंट होगा जो कलर ऑफ द आइज को कंट्रोल करेगा। इन्हें हम कहते हैं एलेल्स। सो द पेयर ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलेल्स। पेयर ऑफ जीन्स है हमारे एलेल्स। ओके, ये एक डीएनए का सेगमेंट दिस इज जीन, और उनके लिए कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग जीन्स हैं इन्हें हम कह रहे हैं एलेल्स। अब आता है हमारा होमोजाइगस कंडीशन। अगर आपको जीन्स और एलेल्स समझ में आ गए हैं तो ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझना बहुत आसान है। वैसे तो आप सबको पता होगा कि आइस के बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकते हैं, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पर अभी के लिए हम सिर्फ ब्लैक और ब्लू का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ओके, अगर इस क्रोमोसोम में ये वाला जीन विच इज कोडिंग फॉर अ कलर ऑफ द आई, इफ इट इज कोडिंग फॉर द ब्राउन कलर ऑफ द आई, और दूसरा वाला क्रोमोसोम में भी ये जो एलील है ये ब्राउन कलर के लिए ही कोड कर रहा है, तब हम कहेंगे ये अपने होमोजाइगस कंडीशन में है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट द एलील्स आर कोडिंग फॉर द कैरेक्टर्स आर सिमिलर। दैट कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होगी? अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। इंस्टेड ऑफ कोडिंग फॉर अ ब्राउन कलर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे इस क्रोमोसोम का ये वाला जीन ब्लू कलर के लिए कोड कर रहा है। ओके, तो एक एलील ब्राउन कलर के लिए कोड कर रहा है, दूसरा एलील ब्लू कलर के लिए कोड कर रहा है, क्योंकि अभी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, पर कैरेक्टर कौन सा है? आई का कलर। इस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन, और हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एलील्स फॉर द कैरेक्टर्स आर डिसिमिलर और डिफरेंट। अब आप सोच रहे होंगे अगर एक ब्राउन के लिए कोड कर रहा है, एक ब्लू के लिए कोड कर रहा है, तो आइस का कलर कैसा होगा? क्या एक ब्लू होगी एक ब्राउन? नहीं। इसका आंसर आगे आपको मिलेगा जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। फिनोटिपिक का मतलब होता है वो सारे कैरेक्टर जो हमारे को एक्सटर्नली दिखाई दे रहे हैं। ऑल द फिजिकल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। और जीनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? कि हाउ द जीन्स आर अरेंज, दैट इज जीनोटिपिक कैरेक्टर। जैसे अभी हमने कलर ऑफ द आइज की बात की, तो ब्राउन कलर ऑफ द आइज आर फिनोटिपिक कैरेक्टर। वो आप इजीली देख सकते हैं कि किसी पर्सन की कलर का आइज आइज के कलर ब्राउन है, पर जीन्स किस तरह अरेंज्ड है? आइदर इट इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्म और इज इट प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। सो दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसमें दोनों ब्राउन कलर के लिए कोड कर रहे हैं, इसमें एक ब्राउन और एक ब्लू के लिए कोड कर रहे हैं। ये इसके जीनियोटिपिक कैरेक्टर हैं, पर अल्टीमेटली पर्सन की आइज कैसी होंगी? ब्राउन। ओके बेटा, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो हमें दिख रहे हैं, जीनियोटिपिक कैरेक्टर जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, बट द जीन्स आर प्रेजेंट इन दैट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मेंडल्स अप्रोच कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए करा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इंक्लूडेड मैथमेटिकल लॉजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा। इन्होंने कई सालों तक फॉर अराउंड 7 years कई सारे पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए, और इतने बड़े जो डेटा इन्होंने ऑब्टेन करी उसको वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर ही एनालाइज करते थे। सेकेंडली ही कंडक्टेड मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो मीन्स 1, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया थे कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, डू यू रिमेंबर दैट?
तो उन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में जब किसी एक कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है, हाइट की बात कर रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके, देन वी विल कॉल इट अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस. डाई मीन्स टू, तो जब 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस. देन ही क्रॉसेस pollinated plants with alternate form of traits and used the seeds to generate F1 generation. अब alternate form of traits means यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं 2 flowers हैं, the both are of different trait. Trait means characters. एक प्लांट ऐसा है जिसके फ्लावर वाइट कलर के हैं, दूसरा प्लांट है जिसके फ्लावर्स पर्पल कलर के हैं. अब इन्होंने क्या किया, वाइट कलर के फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन्स को पर्पल कलर के फ्लावर के कार्पल्स के ऊपर स्प्रिंकल करा. ऐसा करने से क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. अब इससे जितने भी सीड्स प्रोड्यूस होंगे, आपको पता होना चाहिए फ्लावर क्या बनते हैं, अल्टीमेटली सीड्स बनते हैं, ठीक है. अब जितने भी सीड्स प्रोड्यूस होंगे और इन सीड्स को जब हम उगाएंगे तो इनसे जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे उसे हम कहेंगे F1 जनरेशन. वही उन्होंने यहाँ पर बताया है. इन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया और इन्होंने सीड्स प्रोड्यूस किए F1 जनरेशन जनरेट करने के लिए. देन द F1 ऑफस्प्रिंग्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन. इसका मतलब जितने भी प्लांट्स इस जनरेशन में प्रोड्यूस हुए हैं, इन्हीं के फ्लावर्स के जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे या फिर इन्हीं के जो फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनको अब आपस में पॉलिनेट करवाया जाएगा. सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू सीड्स डेवलप होंगे और जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे इनसे फिर से हम प्लांट बनाएंगे. उस प्लांट्स की जनरेशन को हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन. Now let's move to the next slide, that is Mendel's observation. On the basis of his experiment, इन्होंने कुछ observations किए. The first one was F1 showed one of the parental form of the trait. अब F1 क्या है, ये वाली जनरेशन. पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस करने के बाद जो पहली जनरेशन होगी इन्हें हम कहेंगे F1 जनरेशन. पेरेंटल ट्रेट रीअपियर्स. यहाँ पर 2 पेरेंट्स हैं. एक प्लांट ऐसा है जिसके फ्लावर्स वायलेट कलर के हैं, दूसरा प्लांट ऐसा है जिसके फ्लावर्स वाइट कलर के हैं. इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग हुई तो जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए दे ऑल वर हैविंग अ पर्पल फ्लावर. कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई. ब्लेंडिंग मतलब इन दोनों के कलर्स मिक्स होकर कोई थर्ड कलर इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया. कंप्लीटली 100% पर्पल कलर्स ही ऑब्टेन हुए. Now the fourth one was dominant traits appears in F1 generation and recessive traits does not. ये बहुत ही important observation था. इन्होंने कहा कि जब हम F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स उगाएंगे उसमें सिर्फ वो ही कैरेक्टर शो करेंगे जो डोमिनेंट होंगे. जैसे यहाँ पर पर्पल कलर डोमिनेटिंग है इसीलिए सिर्फ वो ही अपेयर हुआ F1 जनरेशन पे, पर वाइट कलर्स क्योंकि रेसेसिव रह गया तो इसके कोई भी कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं होते. पर जब हम ये F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग का मतलब है इसी फ्लावर को, इसी के पोलन ग्रेन को इसी के फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ कराने के बाद जो सीड्स प्रोड्यूस हुए और उन सीड्स को उगाने के बाद जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे हमारे F2 जनरेशन. तो जब इसी की सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन ऑब्टेन की तब इन्होंने देखा कि इस टाइम अब कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स भी प्रोड्यूस हुए या फिर कुछ ऐसे प्लांट प्रोड्यूस हुए जिनके फ्लावर्स वाइट कलर के थे. अब ट्रेड्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, या तो इट कैन बी इनहेरिटेड ट्रेड और इट कैन बी एक्वायर्ड ट्रेड. ट्रेड्स का एक्चुअली मतलब क्या है, हम इतनी देर से ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कैरेक्टर्स. अब ये कैरेक्टर्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये इनहेरिटेड होंगे या तो एक्वायर्ड होंगे. इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो अपने पेरेंट से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जनरेशन पे जाते हैं और इनकी वजह से डीएनए में चेंजेस आते हैं. एक्वायर्ड ट्रेड्स हम लाइफ टाइम में अपने लाइफ स्पैन में अचीव करते हैं या फिर रिसीव करते हैं और ये हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफ़र नहीं होती, ना ही इसमें डीएनए में कोई चेंजेस आते हैं. इसका एग्जांपल है हेयर कलर, स्किन कलर, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे हाइट ऑफ अ पर्सन, टेक्सचर ऑफ हेयर,
कर्ली होते हैं, कुछ लोगों के हेयर स्मूथ होते हैं, आई मीन स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। ये सारे फिजिकल कैरेक्टर्स होंगे, इनको हम इनहेरिटेड ट्रेट कहेंगे। एक्वायर्ड ट्रेट, जैसे आपने कोई नई लैंग्वेज सीखी या फिर कोई गेम खेलना सीखा है, तो ये तो आपके बच्चों को नहीं आएगा, उनको भी सीखना पड़ेगा, तो ये कैरेक्टर्स होंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। दिस इज द फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम इस स्लाइड में बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब 2 इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज आर क्रॉस्ड, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट इंडिविजुअल, दिस इज सेकेंड इज इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? हमारी पी प्लांट की स्पीशीज, ठीक है, वेराइटीज डिफरेंट हैं। तो पी प्लांट की 2 अलग अलग स्पीशीज को जब हम क्रॉस कराते हैं, द फॉर्म ऑफ द ट्रेट दैट अपेयर्स इन द F1 हाइब्रिडाइज, दिस इज द F1 जनरेशन। ये कह रहे हैं जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में अपना कैरेक्टर शो करेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। दैट मीन्स पर्पल इज अ डोमिनेटिंग कैरेक्टर एंड द अदर दैट रिमेन्स हिडन इज कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर। वाइट कलर का कोई भी प्लांट यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ, दैट मीन्स वाइट इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। सो दिस वॉज द फर्स्ट लॉ विच वॉज गिवन बाय द मेंडल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प ली थी। ये हम और अच्छे से समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइट ऑफ द प्लांट का। Okay, we are taking the example of height of the plant. Now there are 2 different varieties of the pea plants can be found in the population. Some of the plants are tall and some of the pea plants are short. अब हम इस tall को 2 capital T से रिप्रेजेंट करेंगे और इस short plant को हम 2 small t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने इसको 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि the chromosomes are always present in the pair and the pea plants are diploid. Diploid means जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारी पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन है, ये 2 अलग अलग प्लांट्स हैं। जब ये प्लांट्स अपने गैमेट्स बनाती हैं, या तो आप इसको 2 बार लिखें या 1 बार लिखें, एक ही मतलब है। सो आई एम राइटिंग इट जस्ट 1 टाइम। इनके जब गैमेट्स बनेंगे तो जितने भी गैमेट्स होंगे उन सब के अंदर वो जीन्स होंगे जो टॉल प्लांट्स के लिए कोड करेंगे। सिमिलरली इन दिस प्लांट जितने भी गैमेट्स ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा, सारे के सारे गैमेट्स किसके लिए कोड करेंगे? शॉर्ट हाइट ऑफ द प्लांट्स के लिए। अब जब मेंडल इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, दे ऑल वर टॉल। इस जनरेशन को हम कहेंगे F1 जनरेशन। इन्होंने F1 जनरेशन में जितनी भी प्लांट प्रोड्यूस हुए, अब उन सब की सेल्फिंग कराई, उन सब की आई मीन उनमें से किसी एक को लेकर अब उन प्लांट्स की सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराई मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? जो ये प्लांट्स हैं अभी 2 तरह के गैमेट्स बनाएंगे। पहली कंडीशन ऐसे है जिसमें ये टॉल के लिए कोड कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ये शॉर्ट प्लांट्स के लिए भी कोड करेंगे। इसको हम और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में हम एक साइड में मेल के गैमेट्स को लिखते हैं और दूसरी साइड में फीमेल के गैमेट्स को लिखते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों सेम है, तो हम इस साइड में लिखेंगे मेल के फीमेल के गैमेट्स लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं मेल के गैमेट्स। अब क्या होगा जब ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ कंबाइन करेगा तो इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड द प्लांट्स विल बी टॉल। इन द नेक्स्ट कंडीशन, if these gametes fuses with those gametes which are coding for the short plant, then the result will be 1 capital T and 1 small t. पर plant कैसे होंगे? They will be tall. Third condition, small t and capital T together they will become 1 capital T and small t, but the result will be tall. And
शॉर्ट टी और शॉर्ट टी कंबाइन करके स्मॉल टी बनाएंगे। इस केस में कंडीशन डिफरेंट होगा और हमारे प्लांट्स का हाइट कैसा होगा, शॉर्ट होंगे। बेटा यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपने देखने होंगे। जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं हम इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन फर्स्ट। ओके, लीव इट। ओके, और जो शॉर्ट प्लांट्स होंगे इनके लिए हम वो वाले अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स के हैं। यहाँ पर टॉल है तो हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी फॉर टॉल। पर जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसको भी हम टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट लेटर हमारा स्मॉल होगा। और दूसरा समझने वाली बात यह है, जब आप स्मॉल टी और कैपिटल टी को फ्यूज़ करा रहे हो ना, फिर भी कैपिटल टी आप पहले लिखोगे। डोमिनेटिंग कैरेक्टर को हम पहले लिखेंगे, स्मॉल टी को बाद में लिखेंगे। अब आप इधर देखिए, इस पुनेट स्क्वायर में 3 ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर प्लांट्स टॉल हैं, है ना, और 1 कंडीशन कैसी है जहाँ पर प्लांट शॉर्ट हैं। तो इसका रेशियो क्या होगा, ये हमारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 विल बी द फिनोटिपिक कैरेक्टर या फिर फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। जीनोटिपिक रेशियो मतलब किस तरह से जीन्स अरेंज्ड हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, वो होता है जीनोटिपिक रेशियो। तो इसमें 3 अलग अलग पैटर्न से जीन्स अरेंज्ड हैं। पहली ऐसी कंडीशन है होमोजाइगस कंडीशन, जिसमें बोथ द जीन्स आर कैपिटल टी। सेकेंड कंडीशन है हेट्रोजाइगस कंडीशन, जिसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी। और थर्ड ऐसी कंडीशन है, अगेन इट इज इन अ होमोजाइगस कंडीशन बट बोथ द टी आर स्मॉल टी, दैट मीन्स दे आर कोडिंग फॉर द शॉर्ट हाइट ऑफ द प्लांट्स। नाउ जितने भी ये वाले प्लांट्स होंगे, ऐसे कितने प्लांट्स हैं जहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो ओनली 1 सच कंडीशन इज प्रेजेंट जहाँ पर बोथ द टीज आर कैपिटल, सो वी विल राइट हियर 1। नाउ हाउ मेनी सच कंडीशंस आर प्रेजेंट व्हेन 1 टी इज कैपिटल एंड 1 इज अ स्मॉल टी। एक तो ये है और दूसरी कंडीशन ये है। तो 2 such cases are present where 1 t is capital and 1 t is small. Now the third one is 2 short t. ऐसी एक यहाँ पर कंडीशन है जहाँ पर दोनों के दोनों t short हैं, तो we will write here 1. So the genotypic ratio will be 1:2:1 and the phenotypic ratio will be 3:1. So this was the monohybrid cross. और ये जो जेनरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई इसे हम कह रहे हैं F2 जेनरेशन। इसका मतलब F2 जेनरेशन में 75% चांसेस हैं कि हमारा प्लांट टॉल होगा और 25% चांसेस हैं कि वो प्लांट शॉर्ट होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। इसके बाद अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना या फिर अलग होना। तो इसमें इस लॉ में ये बताया गया कि जो मेंबर्स हैं एलिलिक पेयर्स ऑफ अ ट्रेट, किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो 2 एलिलिक पेयर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं पेरेंट्स जनरेशन पर, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे या फिर सेग्रीगेट हो जाते हैं। And only one of the factor enters the gamete. As you can see in this picture, 2 gametes were present and during the time of gamete formation ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। एक गैमेट इधर चला गया, दूसरा गैमेट इधर चला गया। सिमिलरली दिस इज द सेकेंड इंडिविजुअल। यहाँ पर भी जितने भी एलिलिक पेयर्स प्रेजेंट है दैट इज 2 एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग एक दूसरे से गैमेट्स में एंटर करते हैं। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आइए अब देखते हैं आपने क्या सीखा आज। एक क्विज टाइम है और मैं चाहूँगी कि आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन पर दें। When 2 alleles of a particular genes are different, that condition is called, the options are heterozygous condition, homozygous condition, homologous condition or heterologous condition. Thanks for watching the video. For any queries, you can just write me at learnwithme2601@gmail.com. Thank you very much.